Hello students, today we are going to continue linear equation in one variable for class 8. In the previous video, I told you about how to solve linear equation to get the value of a particular variable. The cases were two when you are having a linear expression on one side of the equal side, and the other case you were having linear expression on both the side of the equal side. In both the cases you are not having any sort of denominator. But what will happen if you are having a denominator? यानी कि आपके पास linear equation, तो आपके पास एक equation है solve करने के लिए. First you have to reduce it to linear equation. Linear equation में reduce करने का मतलब है कि you will just remove the denominator from that particular situation given. तो let's take the example first. अगर suppose आपको equation given है 6z plus 1 upon 4 upon 5 sorry minus 3 equals z upon 2. Now you have to solve this equation to get the value of z. आपने दो मेथड्स पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बैलेंसिंग एंड ट्रांसपोजिंग. These are the main key to solve any linear equation. आपको ये हर फॉर्मेट में यूज करना होगा. But whenever you are using them, you will mention in a bracket that you are using this particular condition in this particular question. So before further continuing, you first have to keep this in the mind that you have to remove the denominator. To remove denominator, you have to take the LCM. अब LCM आप किस तरीके से लोगे? यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सिर्फ दो दिख रहे हैं. आप सारे डिनोमिनेटर कंसिडर करोगे जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल साइन के और जितने भी राइट हैंड साइड पे. In this question, you are having only two denominators, 5 on the left side and 2 on the right side. Because if there is no denominator below 3, you can simply take it as 1. और when 1 के केस में आपको LCM लेने की जरूरत नहीं होती. But instead of 1, if there would have been any other number, let's say 2, 3, 5, 7, any number, then you would have taken the LCM of 3 numbers together. But now since it is 1, you will take the LCM of only 2 numbers, that is 5 and 2. On taking LCM, you will get 10. Now to remove denominator, you will multiply each term by the LCM. Each term means that in this particular case, if I am considering the left side, there are two terms. One term 6z plus 1 upon 5 and the other term is 3. And on the right side there is only one term z upon 2. So you will multiply each term by 10. It will get cancelled out. This will also get cancelled out. Now important thing that you have to multiply complete 6z plus 1 by 2. Don't confuse it as 6z plus 1 into 2. अगर आप इसी कंसिडर करके चलोगे तो then the answer would come definitely a wrong one. You have to make sure कि आप 6z plus 1 complete को 2 से multiply कर रहे हो. Complete multiplication का मतलब है first you will multiply 6z by 2, then you will multiply 1 by 2. You will get 12z plus 2 minus 30 equal 5z. अब जितना भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आइदर ऑन लेफ्ट साइड आइदर ऑन राइट साइड सेपरेटली उतना आप सॉल्व करोगे. फिर व्हेन यू विल रीच टू अ कंडीशन वेयर देयर इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स ऑन डिफरेंट साइड्स यू विल अक्यूमुलेट देम ऑन ईच साइड. अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो प्लस 2 माइनस 30 को यू विल गेट माइनस 28. नाउ वही आप जो पहले करते आए हो ट्रांसपोजिंग या बैलेंसिंग. इफ आई एम राइटिंग ट्रांसपोजिंग तो व्हाट आई विल से ट्रांसपोजिंग 5z एंड माइनस 28 ऑन अदर साइड बिकॉज आई विल ट्रांसपोज इट. On transposing 5z to LHS, it will come in the form of negative sign, यानी कि subtraction के अंदर आएगा कि this is 5z here is of positive sign and 28 since it is negative on the left side, it will come as positive on the right side. So what you will get 12z minus 5z, 7z equal 28. On solving you will get z equals to 28 upon 7 equals to, again you will mention transposing 7 on the other side. क्योंकि आप 7 को ट्रांसपोज कर रहे हो और अदरवाइज यू विल राइट डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ दी साइड. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप जब भी अपनी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन से क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इफ यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू विल डू इट. आप अगर एग्जाम में भी कर रहे हो तो ट्राई इफ यू हैव द टाइम ट्राई टू वेरीफाई द आंसर बिकॉज इफ यू आर वेरीफाइंग तो आपको इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा दैट योर आंसर इज फॉर श्योर करेक्ट. For verification, you will put z equals to 4 first on the left hand side. You will write here verification. Solving LHS. Put z equals to 4 on LHS. 6 into 4 plus 1 upon 5 minus 3. On solving, you will get 24 plus 1 upon 5 minus 3. That means 25 upon 5 minus 3. You can cancel out 25 and 5. I'm getting 2. एक important
इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब तो कैंसिल आउट करना है, कब कैंसिल आउट नहीं करना। कैंसिल आउट सिर्फ तब करना होता है जब डिनोमिनेटर के ऊपर आपका न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही नंबर है। अगर यहाँ होता है कुछ इस तरीके से 25 - 3/5, तब आप 5 और 25 को आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि साथ में यहाँ -3 भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 25 अलग है 5 के साथ डिवीजन में, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब नाउ सॉल्विंग RHS, putting z equals to 4, तो here तो you are already getting 4 divided by 2, तो LHS equal RHS, hence verified। वही पैटर्न है सिंपल। जब आप पहले आपको बस जो नई चीज सीखनी है वो सीखनी है हाउ टू रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस करने के लिए आप एलसीएम लोगे, हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन, जैसे आप अब तक पिछले वीडियो में समझते हुए आए हो। आपको वो नॉर्मल इक्वेशन लेने के बाद तो पता ही है उसे सॉल्व कैसे करना है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये मैं आपको इन द सॉर्ट ऑफ होमवर्क दे रही हूँ, यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आती है, यू विल मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तीनों क्वेश्चन में आप एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पर कुछ भी डिवीजन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को, आपस में जितना भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, फिर उसके बाद सॉल्व करके आपको एक रिड्यूस लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। वही आप ट्रांसपोजिंग से सारी वैल्यूज इधर उधर लेके जाएंगे, जितने वेरिएबल है उसे एक साइड पे एक्यूमुलेट कर देंगे इक्वल टू के, और जितने कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड पे। सेकंड पार्ट में आपको डिनोमिनेटर्स गिवन है, आप एलसीएम लेंगे। थर्ड पार्ट में सिंपली फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि डेसिमल में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल whenever you are doing multiplication or any sort of mathematical operation while you are dealing with the decimal numbers. Now अब आपको आ गया है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर लीनियर इक्वेशन रिड्यूस्ड नहीं दे रखी तो उसे पहले कैसे रिड्यूस करना है, फिर सॉल्व कैसे करना है। अब थर्ड केस ये आता है कि आपने इस केस में तो ये पढ़ा कि आप तब कैसे डील करेंगे जब आपके पास डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स है, रिड्यूस कैसे करोगे। बट व्हाट अबाउट इफ आई एम हैविंग वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट नंबर्स इन द डिनोमिनेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, तब हम क्या करेंगे। यानी कि अगर आपको सॉल्व करना है इक्वेशन जो आपकी फॉर्म की है ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इक्वल टू k cx प्लस d, यहाँ पे d नॉट इक्वल टू, ये पूरा टर्म नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें डिफरेंट चीज ये है कि आपका डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। पहले आपके वेरिएबल्स सिर्फ न्यूमरेटर्स में थे, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहे थे कहीं पर अलग से, ना डिवीजन में आ रहे थे। अब यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गए, तब आप क्या करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वहां से आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल माइनस 2 अपॉन 5। अब जैसे ही आपको नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख जाता है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेक श्योर कि आप ये एरोज ड्रॉ करो हमेशा अपवर्ड साइड पे। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी नंबर आपका राइट हैंड साइड पे है, आपको उससे लेके जाना है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ, और जो आपका डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ। हमेशा यही पैटर्न आप फॉलो करोगे इन द whenever you are doing क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्या करना है, 5 पूरा मल्टीप्लाई होना है 3y प्लस 4 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होना है कंप्लीट 2 माइनस 6y के साथ। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है ब्रैकेट्स लगे तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा आपका। 5 into 3y you will get 15y
5 plus 5 multiply 4 you will get 20. Here you will get minus 2 multiply 2 minus 4, minus 2 multiply minus 6y you will get plus 6y. अब आपको एक reduced linear equation मिल गई. minus 2 multiply minus 6 you will get plus 12y. अब आपको एक reduced linear equation मिल गई. अब आपको यहाँ पे simply क्या करना है कि variables को आप एक साइड accumulate करोगे और constant को दूसरी साइड. प्रोसेस एक्यूमुलेशन का वही है कि आप या तो ट्रांसपोजिंग करो या फिर बैलेंसिंग. ट्रांसपोजिंग इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल चीज कम लिखनी पड़ेगी. आप सिंपली लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग 12 and plus 20 ऑन द अदर साइड, या फिर ट्रांसपोजिंग 15y and minus 4 ऑन द अदर साइड, जो आप करना चाहो. 12y को ट्रांसपोज करना बेटर है ताकि y आपका नेगेटिव में ना हो. तो ट्रांसपोजिंग करने में आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 12y and 20 ऑन अदर साइड. ट्रांसपोज करने पर आपका 12y प्लस का है, यहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा. 15y माइनस 12y, 20 आपका प्लस का है, यहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट 15y माइनस 12y यू विल गेट 3y इक्वल्स टू माइनस 24. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट माइनस 8. आपको y की वैल्यू मिली माइनस 8. अब फिर से वैल्यू आ गई, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वेरिफिकेशन भी करोगे. तो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आप करोगे सॉल्विंग LHS. और ध्यान रहे वेरिफिकेशन में आप कोई भी ऐसा चेंजेस कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ भी ऐसा नहीं करोगे. वेरिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली वैल्यू को पुट करो, जैसा रॉ फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन था आप उसी रॉ फॉर्म में उसे सॉल्व करोगे. ऑन पुटिंग -8 ऑन LHS, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको बस एक नंबर दे रखा है. आपका -2.5 अगर आ गया LHS सॉल्व करने पर तो वो करेक्ट होगा. वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई -8 प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 -6 मल्टीप्लाई -8. ओके, 3 into -8 you will get -24 plus 4 upon 2 -6 into -8 you will get plus 48. So on solving this you will get -20 upon 2 plus 48 you will get 50. आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल गया -2 upon 5 which is equal to your RHS, hence verified. आपने दो पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़े आज. पहला, जब आपका जो आपको कंडीशन गिवन है वो एक रिड्यूस्ड लीनियर इक्वेशन नहीं है जिसमें आपके कुछ नंबर्स या तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो आप उन्हें सॉल्व करके रिड्यूस करके लाओगे एक सिंपलर लीनियर इक्वेशन में, देन यू विल सॉल्व इट. एंड इन द अदर केस यू आर डीलिंग विद द केस व्हेन यू आर हैविंग वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तब आप क्या करो, आपको डिवीजन में वेरिएबल दिख रहे हैं, सिंपल सा फंडा है, आपको सीधा क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयर इज नो अदर वे ऑफ सॉल्विंग इट. आई एम सॉल्विंग वन अदर क्वेश्चन जो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ सकता है. तो विल स्टार्ट. Question is x minus bracket 7 minus 8x upon 9x minus 3 plus 4x equal to 2 upon 3. अब जो मैंने आपको फंडा पहले वाले पार्ट में बताया वही आपको याद रखना है. आपको दिख गया भाई डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, पहली चीज आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो 3 आपका कंप्लीट. मैंने यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट लगाया, स्मॉल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्मॉल ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है. स्मॉल लगाने से कंफ्यूजन हो सकती है, तो ड्रॉपिंग दैट आइडिया ऑफ टेकिंग स्मॉल ब्रैकेट, कंसीडर टेकिंग लार्ज ब्रैकेट अगर स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा है. x minus 7 minus 8x equal to 2 multiply 9x minus 3 plus 4x. अब आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो. ब्रैकेट में सबसे पहले आपके स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो. x minus 7 plus 8x 2 9x minus 3 minus 4x. जितना आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर सकते हो इजीली उतना सॉल्व करो. Here you will get x plus 8x 9x minus 7. Here you will get 9x minus 4x 5x minus 3. अब आप मल्टीप्लिकेशन करो. 3 9 27 x minus 21
10x माइनस 6। अब आपकी एक रिड्यूस्ड लिनियर इक्वेशन आ गई, इसमें आप वेरिएबल्स को एक साइड एक्यूमुलेट करोगे, कांस्टेंट को एक साइड। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग 10x, क्योंकि आपको 10x को हिलाना है यहाँ से, एंड माइनस 21 ऑन अदर साइड। तो आप उसमें क्या करोगे, 27x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 21। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रांसपोजिंग कर रहे हो तो हमेशा याद रखो, आपने जिसको भी पिक करा है ट्रांसपोज करने के लिए, उससे आप हमेशा बाद में लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10x को ट्रांसपोज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी जो वेरिएबल था हमेशा वो पहले लिखा जाएगा। डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव साइन के साथ है या नेगेटिव साइन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रांसपोजिंग -21, यहाँ पर ऑलरेडी -6, तो मैं -6 को पहले ही लिखूंगी टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। व्हाट यू विल गेट हियर 17x equal to minus 6 and plus 21. On solving this you will get plus 15. So from here you will get x equals to 15 upon 7. आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब आप वापस से आपको वेरिफिकेशन करना है, तो आप x equals to 15 upon 17 को यहाँ पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर। अब इसी को लेकर हम दूसरे और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन गिवन है और आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है आंसर, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि इफ यू आर सीइंग कि यहाँ पर जो आपका एलएचएस में जो पार्ट गिवन है दैट इज अ वेरी लेंथी पार्ट, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू विल सॉल्व इट कंप्लीटली। लेकिन वेरिफिकेशन पे नहीं बोला गया, तो व्हेन यू एवर यू गेट इन द रिमेनिंग टाइम आफ्टर सॉल्विंग कंप्लीट पेपर, आपको जो रिमेनिंग टाइम मिलेगा तब आप ऐसे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन में टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि अगर आप इस तरह की वैल्यू आई 15/17 फ्रैक्शन में और उसको आप वेरीफाई करने के लिए बैठ जाओ एलएचएस में, तो इट विल टेक अ टाइम। तो आप वो टाइम तब यूज करोगे व्हेन यू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम, व्हेन यू आर डन विद योर कंप्लीट पेपर। अब इसके रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कोई भी डाउट होगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई हमें इस पार्ट में प्रॉब्लम। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करोगे, और आपको जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, नो नीड टू मेंशन द स्टेप इन विच यू हैविंग प्रॉब्लम, आप सिंपली पार्ट नंबर मेंशन कर सकते हो। आई विल सॉल्व इट इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with how to make equations when you are giving statement and then solve it. Thank you and keep solving questions.